Hello and welcome back to your channel Freak Safari. My name is Abhishek and I believe you guys are doing good and studying properly. So my dear kids, in the previous video lesson, I have discussed about the electric field intensity due to the arc and have seen certain applications of that. Now in today's video lesson, we are going to talk about the electric field intensity due to the uniformly charged finite rod, and this is the sixth video lesson on the electrostatic. Now, uniformly charged is very important because the charge has to be uniformly distributed throughout this rod. Now, so I'm taking the finite rod for now, means the length is finite. So, infinite and finite are very much relative term. Infinite is when we cannot see the ends. आपको ends नहीं दिख रहे होते हैं. That is when we say it is an infinite thing. है ना? For example, if you look at your palm, you can easily see the tip of this finger, right? But आप इसको अपने नाक में सटा लो, आपको एक टिप ऑफ फिंगर नहीं दिख रहा होगा. दिस टिप ऑफ फिंगर विच इज काइंड ऑफ वेरी मच ऑफ फाइनाइट लेंथ, बट जैसे ही आप इसको अपने नाक से सटा लेते हो, if you bring it close to the nose, you will not be able to see the tip of this finger. वो हमारे लिए इनफाइनाइट बन जाता है. So infinite is all about a relative position, है ना? आप अगर एक सिंपल एग्जांपल समझो, for you walking 200 kilometers or going 200 kilometers will be a very much finite distance. बट वही काम मैं एक छोटे से चींटी को बोल दूं, उसकी लाइफ लग जाएगी, फिर कछुए को बोल दो तो बेचारा बहुत परेशान हो जाएगा ना, उसके लिए बहुत ही बड़ा वो डिस्टेंस हो जाएगा 200 किलोमीटर और 500 किलोमीटर. बट फॉर अस दिस इज अ काइंड ऑफ फाइनाइट, हम बहुत बड़े मजे में उसको आराम से कवर अप करते हैं. तो इनफाइनाइट इज अ वेरी मच रिलेटिव टर्म, सिंपल लैंग्वेज में जिसका एंड्स को आप न देख पाओ, दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट. फॉर एग्जांपल, स्काई इज इनफाइनाइट, you cannot see the edges of the sky, right? So it becomes infinite to you. All good? Okay, anyways, so let us say that we have a rod of having some charge q is placed over here, और हम अब बात करेंगे चार्ज डेंसिटी का. I think in the previous class I have told you linear charge density, surfacial and the volumetric. Since we have the charges spread over this length, so this is the case of linear charge density. So lambda coulomb per meter is the linear charge density of this rod बच्चों. ठीक है, अब अपन को करना क्या है, at let's suppose at this point P, maybe this point I can say this is P. At this point, at a distance of D from this rod, कहीं से भी, it is not symmetrically placed, कहीं से एक डिस्टेंस है D हमने माना है इस रॉड से जिस पे चार्ज रखा हुआ है. You have to find the electric field intensity at this point P. सिंपल सी बात है, यही क्वेश्चन हमारा, और इस पे हम आज का क्लास को डिस्कस करेंगे और इसके कुछ क्वेश्चंस को भी कवर अप करेंगे. ठीक है, कुछ इसके वैरायटीज को, कुछ इसके डिफरेंट फॉर्म्स को कवर अप करेंगे बच्चों. तो व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू, सिंस कूलम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर द पॉइंट चार्जेस, और यहाँ पे तो एक कंटिन्यूअस बॉडी है, सो दिस इज अ सेकंड कंटिन्यूअस बॉडी. मैंने पहला कल क्लास में बताया था आर्क, आज हम बात कर रहे हैं रॉड का. यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है उसमें. ठीक है, चार्ज को यूनिफॉर्म आप रख रहे हो. Obviously, we're going to take the help of integrations, but before that, let us figure out the angles. Let us represent the angle, bachcho. So let's say this angle is alpha, okay, and it should be taken from the midpoint, है ना? हमें this line के साथ angle को लेंगे, left या right, है ना? And this is taken as beta. This is taken as beta. तो alpha and beta हमने दो angle मान लिया है, जो कि इस point के साथ, अगर मैं इस point P को यहाँ लिख दूं बच्चों, this is the point P, और इसके साथ edges of the rod ने जो एंगल बनाया अल्फा बीटा है. ठीक है, नाउ व्हाट आई एम सपोज्ड टू डू, आई हैव टू चूज एन एलिमेंट्री पार्टिकल. ऑब्वियसली हमारा प्रोसेस तो वही रहता है, वी गोना चूज एन एलिमेंट्री पार्टिकल ओवर हियर. लेट अस सपोज इट्स लेंथ इज dy एट अ हाइट y फ्रॉम दिस पॉइंट ओवर हियर, है ना? हमने y डिस्टेंस में मान लिया है. बिकॉज ऑफ दिस आई एम गोना फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर इसको हम वेक्टर कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेंगे, बिकॉज इंटीग्रेशन डज नॉट ऐड द वेक्टर वैल्यूज. तो हमने इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के, कंपोनेंट्स निकाल के उसको प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे. ठीक है, जल्दी से देखते हैं होता क्या. लेट अस लुक एट दिस. ओके, सो बच्चों ओवर हियर इफ आई जॉइन दिस विद दिस पॉइंट, लेट्स सपोज दिस, ओके, then because of this the electric field has to be in this direction obviously. So let's suppose कि DE is in this direction. All good बच्चों? Now also let us say that this angle is theta. हमने एक थीटा पे एक एलिमेंट्री पार्टिकल लिया है. ठीक है जी, वो डी फील्ड इस तरफ बना रहा है. तो इसके टू कंपोनेंट्स होंगे, विल हैव दिस कंपोनेंट एज वेल एज दिस कंपोनेंट. इफ इट इज थीटा, दिस हैज टू बी थीटा. ऑल गुड बच्चों? सो दिस इज गोइंग टू बी डीई कॉस ऑफ थीटा एंड दिस हैज टू बी डीई साइन ऑफ थीटा. साइन ऑफ थीटा. नाउ मजे की बात है कि हम इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट बोल सकते हो आप, एक्स बोल सकते हो, वाई बोल सकते हो. नॉर्मली वी से इट इज अ परपेंडिकुलर कंपोनेंट. ये हमारा
परपेंडिकुलर कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, परपेंडिकुलर टू व्हाट, टू दिस रॉड, और इसको हम लोग बोल सकते हैं पैरेलल कंपोनेंट। दिस कुड बी कॉल्ड एज अ पैरेलल कंपोनेंट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। पैरेलल किसके, इस रॉड के, या तो इस तरफ होगा या फिर उस तरफ होगा, हम उसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे, उसको भी बड़े मजे में हम लोग समझ लेंगे बच्चों, टेंशन नहीं है, ठीक है, उसको भी देख लेंगे। अच्छी बात है। तो फिलहाल तो आप ये समझ लो भैया दिस इज डी और ये y है, तो ए वाला लेंथ कितना होगा, क्योंकि ये निकालना जरूरी है, बिकॉज टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड वी नो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर है ना। तो दिस लेंथ हैज टू बी नोन टू यू, तो इसको मैं यहां पे लिख दूं वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बच्चों, अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अंडर रूट हो गया बच्चों, ठीक है जी, ऑल गुड। तो चलो इस डी का वैल्यू निकाल लेते हैं। दिस स्मॉल डीई शुड बी हाउ मच, कितना हो जाएगा जी, इसमें चार्ज कितना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फिगर आउट दैट। तो चार्ज ऑन दिस एलिमेंट्री पार्टिकल, लेट अस सपोज दैट इज dq, दैट शुड बी हाउ मच, चार्ज डेंसिटी टाइम्स इट्स लेंथ व्हिच इज dy। तो ये हमारा चार्ज हो गया, छोटा सा चार्ज इस एलिमेंट्री पार्टिकल पे हो गया बच्चों। सो द आंसर हैज टू बी k dq अपॉन दिस लेंथ। तो dq का वैल्यू डायरेक्टली पुट कर दो ना, क्यों एक स्टेप और को इंक्रीज करना है। dq इज हाउ मच, लैम्डा dy अपॉन इसका स्क्वायर व्हिच इज गोना बी y स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इटसेल्फ, ठीक है बच्चों। नाउ दैट वी नो वी कैन नॉट डायरेक्टली इंटीग्रेट दिस, मैंने आपके पिछले क्लास में बता रखा है, इसको आप डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि विद द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट्री पार्टिकल आपका d का डायरेक्शन चेंज होगा, राइट, व्हिच मींस इट इज अ वेक्टर और उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो हम उसको डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते। सो दैट इज द रीजन व्हाई आई हैव टेकन दीस टू कंपोनेंट्स, हमने इसका दो कंपोनेंट्स यहां बना लिया है, ठीक है। तो काम क्या करेंगे कि हम पहले इस ई परपेंडिकुलर को निकालेंगे बच्चों, ठीक है, ई परपेंडिकुलर को पहले निकाल लेते हैं। तो ई परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, दैट वुड बी डीई cos थीटा, डीई cos थीटा का इंटीग्रेशन कर देंगे, राइट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी, डी का वैल्यू बच्चों k लैम्डा dy अपॉन y स्क्वायर प्लस d स्क्वायर है ना, एंड देन वी हैव cos ऑफ थीटा इंटीग्रेशन। नाउ द प्रॉब्लम इज we have two variables, y is one variable, theta is one variable, y का लेंथ चेंज होगा ना, इसको आप ऊपर नीचे करो, the value of y is going to change simultaneously, the value of theta will also change, right? So we have two variables, y and theta are the two variables. Now when we have two variables, integration becomes complex, मुश्किल हो जाएगा, तो आपको ना एक वेरिएबल्स में आपको करना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स का आप कर नहीं सकते हो ना, तो you have to convert this to one variable। अब आपके पास चॉइस है, either you want to convert theta in terms of y, that is trigonometry to algebra, or you want to convert y in terms of theta, algebra to trigo. Surprising thing is trigo integration is easier. The reason being you will be studying in maths in the upcoming classes that you know to do the algebraic integration also we use the substitution by you know trigonometrical identities। तो हम लोग सब्स्टिट्यूट भी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज को ही करते हैं अलजेब्रा के टर्म्स, अलजेब्रा के प्लेस पे। तो इट इज ऑलवेज गुड टू हैव दिस इन द ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म, ट्रिग्नोमेट्रिकल इंटीग्रेशंस काफी इजी होता है बच्चों। तो क्यों ना हम y को थीटा के टर्म्स में रिप्लेस कर दें, समझ रहे हो ना, इफ आई गोना रिप्लेस द y इन टर्म्स ऑफ थीटा, हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। तो मैं इसको भी इक्वेशन 1 मान लेता हूं, ठीक है, इसको रहने देते हैं। let us try to do something, derive some relation of y and theta, y और थीटा में कुछ रिलेशन मिल जाए मेरे को, तो हमारा काम बन सकता है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, इन दिस ट्राइंगल, इन ट्राइंगल अगर मान लेते हैं इसको हम ओ पी, इसे कुछ भी मान लो, ए मान लो, क्या दिक्कत है ना। इन दिस ट्राइंगल ओ पी ए, tan theta could be given as what, y upon d, tan theta should be given as y upon d, so tan of theta should be given as y upon d, that means y should be d tan of theta. So let us differentiate this with respect to theta, so that means dy by d theta should be d sec square theta, that gives you dy is equals to d sec square theta d theta, ऐसा अपन को कुछ मिल गया, ठीक है। तो I can replace this dy here, also I can replace this y here, इस y को रिप्लेस कर देंगे और dy को रिप्लेस कर देंगे, then the entire thing is going to come in terms of theta, और हमारा काम बच्चों आसान हो जाएगा, है ना। चलो देखते हैं। तो E perpendicular now could be given as what, k लैम्डा को बाहर रख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, और cos थीटा, इसको मैं लिख देता हूं यहां पे cos थीटा, dy should be how much, d secant square theta, d
सीक स्क्वायर थीटा डी थीटा। बच्चों वाई स्क्वायर को क्या लिखेंगे, वाई को लिखेंगे डी tan थीटा का होल स्क्वायर, डी tan थीटा होल स्क्वायर, दैट शुड बी डी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस डी स्क्वायर, है ना। नाउ लेट अस डी थीटा हमने यहां पे लिख दिया, ठीक है। सो द ओनली वेरिएबल दैट वी हैव बच्चों इज थीटा। अब थीटा कहां से कहां तक जाएगा, ध्यान से देखना है ना। बीटा है ना, फ्रॉम हियर टू हियर, एलिमेंट्री पार्टिकल शुड गो फ्रॉम हियर टू हियर। अगर एलिमेंट्री पार्टिकल यहां पे है तो एंगल कितना होगा, बीटा। बट क्योंकि हमने इसको नेगेटिव लिया है ना, एंटी क्लॉकवाइज है, आई एम टेकिंग इट फ्रॉम हियर, ये एंटी क्लॉकवाइज है और एक क्लॉकवाइज है, आपको किसी एक को नेगेटिव लेना है, तो ऑब्वियसली हम एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लेते हैं। तो द वैल्यू ऑफ थीटा शुड वेरी फ्रॉम माइनस बीटा टू अल्फा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दैट इज द रीजन व्हाई वी आर डूइंग दिस डेरिवेशंस। आपको डेरिवेशन इसलिए समझाया जा रहा है ताकि आप प्रोसेस को समझो, क्योंकि द क्वेश्चंस विल कम, उसमें आपको अगर प्रोसेस नहीं पता है, as I've been telling you from the very first classes, it's going to be complicated for you. So ensure that you learn the process. आप स्टेप को अच्छे से समझो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक में। ये इसका बहुत ही इंटीग्रल कंपोनेंट है कि आप इसको डेरिवेशंस को बहुत ही मजे में आसानी से आराम से समझो, every single thing, कि how the derivation has been done। क्योंकि while solving the question अगर आप बीटा को सब्स्टिट्यूट करने में गलती कर देते हो तो लंका लग जाएगी। एंड I'm going to show you how to find the alpha and beta in the complex situations। हम उसमें भी चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, है ना। फॉर नाउ आप इतना समझ लो कि माइनस बीटा हमने रखा है क्योंकि नेगेटिव उल्टा जा रहा है, और अल्फा रखा क्योंकि हमने उसको क्लॉकवाइज लिया, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे कुछ इसको सॉल्व करते हैं, लेट अस ट्राई टू सॉल्व इट। तो के लैम्डा बाहर ले लो, कॉस थीटा और के लैम्डा डी भी आ जाएगा, है ना। कॉस थीटा सेकंड स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा और सेकंड स्क्वायर थीटा अभी रहने देते हैं, ऐसे तो कैंसिल होगा ही, बट ठीक है। टेक आउट डी स्क्वायर कॉमन, यू विल बी हैविंग 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा व्हिच इज सेकंड स्क्वायर थीटा। बच्चों देखो कितना आराम से कैंसिल हो गया ना, सेकंड स्क्वायर थीटा शुड बी नाउ कैंसिल्ड। सो माइनस बीटा टू अल्फा, लेट्स पुट द लिमिट, d से d चला जाएगा, विल हैव 1d, सो दिस d शुड बी कैंसिलिंग द स्क्वायर। सो व्हाट आर वी गोना हैव ओवर हियर, क्या हमारे पास बचेगा बच्चों, लेट अस हैव अ लुक एट दिस वन। सो e perpendicular should be given as your k lambda upon d, inside we have cos of theta, and the integration is going to be from minus beta to alpha. Cos theta integration is what, sin theta. So e perpendicular bachcho, that's going to be k lambda upon d sin of theta, let's put the limit, minus beta to alpha. So sin of alpha minus of sin of minus beta, sin minus beta will be minus sin beta, minus minus will become plus. So finally the result that we are getting over here is e perpendicular should be equals to k lambda upon d sin of alpha plus sin of beta. Very important result बच्चों, it's a very important result, you should note it out properly और आप इसको अच्छे से नोट कर लो, it's a very important result. All good? Now likewise we're gonna find the value for the e parallel, we're gonna find the value for the e parallel. तो प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम रहेगा। देखो यहाँ पे दो तरीके से आप इसको समझो, दो तरीके से समझो। मैं थोड़ा इसको आई एम श्योर आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, जल्दी से नोट कर लो इसको बच्चों। एवरीथिंग वुड रिमेन सेम व्हाइल फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ ई पैरेलल, एवरीथिंग शुड रिमेन सेम एक्सेप्ट ए वैल्यू। ये थोड़ा अलग हो जाएगा यहाँ पे, है ना। इंटीग्रेशन के टाइम्स पे जो वैल्यू हमारा बचता है ये हमने, अच्छा एक आई थिंक मैंने यहाँ पे मिस्टेक कराया क्या, अच्छा यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन होना चाहिए ना बच्चों, कॉस थीटा, मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा आप सॉरी इसको आप ऐसे कर लो, माइनस बीटा टू अल्फा, ओके। तो हियर विल हैव सम डिफरेंस, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस आएगा और इसको देख लेते हैं। तो आप ऐसे समझो कि अपने को निकालना है ई पैरेलल कंपोनेंट से भी निकालना है, ई पैरेलल कंपोनेंट्स निकालना है। तो ध्यान से देखो, मैं इधर ही कर देता हूं, है ना। दिस पार्ट विल रिमेन सेम, यहाँ पे साइन थीटा आ जाएगा, राइट, दिस विल बी साइन थीटा। इसमें भी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ना डायरेक्शन को डिफाइन कर लो। हमने आउटवर्ड इसको पॉजिटिव माना है तो इनवर्ड नेगेटिव होगा, राइट। लाइकवाइज दो तरीके आपके पास है, या तो आप फिगर को देख के समझो कि ये पैरेलल कंपोनेंट डाउनवर्ड होगा या अपवर्ड होगा। फॉर एग्जांपल दिस रीजन इज लॉन्गर देन दिस रीजन, based upon the figure diagram or based upon the values of alpha and beta we can easily figure it out. अगर ए वाला पार्ट पॉजिटिव ज्यादा है
इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड की तरफ होगा, राइट, क्योंकि इस पार्ट का इतना पार्ट वो नल आउट कर देगा एंड दिस पार्ट वुड बी हैविंग द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट वुड बी इन दिस डायरेक्शन, राइट। तो जो नीचे पैरेलल कंपोनेंट होगा वो नीचे होगा, दैट वुड बी ऑपोजिट टू द लॉन्गर पार्ट। इतना आप समझ लो कि वो लॉन्गर पार्ट के ऑपोजिट होता है। तो एक तो तरीका हो गया इसको विजुलाइज करने का। दूसरा, हम फॉर्मूले में ऐसा काम कर देंगे कि विजुलाइजेशन का मेरे को जरूरत ना पड़े। तो अगर मैं डाउनवर्ड को नेगेटिव ले लेता हूं, इफ आई टेक द डाउनवर्ड एज नेगेटिव, अगर मैंने राइट को लिया है पॉजिटिव और अप को लिया है पॉजिटिव, व्हिच मींस लेफ्ट हैज टू बी नेगेटिव एंड डाउनवर्ड हैज टू बी नेगेटिव। तो आप ध्यान से देखो मेरी बात को बच्चों, समझो इस पॉइंट पे। ये आपका हो जाएगा डीई साइन थीटा विद नेगेटिव साइन, है ना। आप डी साइन थीटा यहां पे कर दो, तो मैं इसको ई पैरेलल को फाइंड आउट कर रहा हूं, ठीक है, ई पैरेलल। तो दिस बिकम्स माइनस ऑफ डीई साइन थीटा। माइनस क्यों, वाई नेगेटिव, क्योंकि हमने साइन को रिप्रेजेंट करा है, वो नीचे की तरफ है, तो हमने उसको नेगेटिव मान लिया बच्चों, ठीक है। ओके, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एवरीथिंग विल बी सेम। ये आपका हो जाएगा साइन थीटा, एक माइनस बाहर रख दो और ये आपका हो जाएगा साइन थीटा, है ना। एवरीथिंग विल रिमेन सेम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो आपका ई पैरेलल हो गया और हमने इसको यहाँ पे ई पैरेलल कर दिया बच्चों। एक माइनस साइन बाहर रख दो और इस कॉस थीटा की जगह क्या कर दोगे आप, साइन थीटा, और एवरीथिंग विल रिमेन सेम। इस कॉस थीटा की जगह आप कर दोगे बच्चों साइन थीटा, यू विल राइट साइन थीटा, एक माइनस साइन हमारा बाहर रहेगा, वन माइनस साइन इज गोइंग टू बी आउटवर्ड, है ना। तो इतना तक बात सही है। तो ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा, इसके बाद मैं आपको सॉल्व कर देता हूं, ठीक है। आफ्टर दिस वी कैन जस्ट डू इट फ्रेशली। आई बिलीव आपको ये समझ में आ रहा हो कि मैंने क्या क्या चेंजेस किए हैं, व्हाट आर द चेंजेस दैट आई मेड इन द पैरेलल कंपोनेंट सॉल्यूशन। तो आप इस बात को समझ लो, यहां पे क्या हो जाएगा, ई पैरेलल शुड बी, आपका ये साइन बच गया, तो नेगेटिव ऑफ के लैम्डा अपॉन डी साइन थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन लिमिट्स, ऑफ कोर्स दैट विल रिमेन सेम। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस और ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। वी शुड बी हैविंग के लैम्डा अपॉन डी cos of theta, let's put the limit minus of beta to alpha, and we know cos is an even function, so cos of minus beta should be cos beta itself, which means finally what are we going to get is E parallel should be k lambda upon d cos of alpha minus cos of beta. In various books you might find it cos of beta minus cos of alpha और cos of theta 2 theta 1 अगर उन्होंने नोटेशन लिया है तो, बट आई विल गो विद दिस वे, ठीक है, डायरेक्शन भी देता है। दिस ऑल्सो गिव्स यू द डायरेक्शन। आप इसको पहले नोट कर लो, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, आई बिलीव आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब ध्यान से मेरी बात को समझो, मैं इसको इरेज कर दूं, है ना। लेट मी इरेज दिस पार्ट। तो आई एम गोना राइट समथिंग समराइज्ड वर्जन ऑफ दिस, आप उसको देख लो। आई बिलीव आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होगी, है ना। और आई एम आल्सो गोना डू दिस डेरिवेशंस विद द गॉस लॉ। जब मैं गॉस लॉ पढ़ाऊंगा तो गॉस लॉ से भी इसको हम देखेंगे, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी के 12th बोर्ड के सिलेबस में वो वाले चीजें, ये सारी एनसीईआरटी के सिलेबस में, बोर्ड्स के सिलेबस में नहीं है, बट यू शुड नो इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर जेईई और नीट, आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए, है ना। इसलिए मैं इस पार्ट को कवर अप कर रहा हूं, ठीक है। ओके, अब देखते हैं। तो व्हाट इज द समरी, हमने दो कंपोनेंट्स निकाले, ई परपेंडिकुलर एंड ई पैरेलल। ई परपेंडिकुलर कितना था बच्चों, के लैम्डा अपॉन डी, आपका साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा था, राइट। एंड ई पैरेलल वाज गिवन एज के लैम्डा अपॉन डी कॉस ऑफ अल्फा माइनस कॉस ऑफ बीटा। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, इसमें तो कोई पंगा नहीं है, दिस इज ऑल गुड, ये हमारा दोनों प्लस में, तो कोई भी मुश्किल वाली बात नहीं है। ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस वन। समझते हैं, मान लो कि अल्फा छोटा है, अल्फा छोटा है मतलब ए वाला पार्ट बड़ा है। Let's say if alpha is lesser than beta, तो सिचुएशन क्या दिखाएगा, अल्फा बीटा से छोटा है, मतलब ऐसा कुछ सिचुएशन होगा बच्चों, दिस इज हाउ इट्स गोना बी। और आप इजीली समझ सकते हो कि दिस पार्ट विल हैव मोर चार्ज, है ना, और दिस मच ऑफ लेंथ विल हैव दिस चार्ज, तो ए इसको इतने पार्ट ना काउंटर कर देगा, इसको दिस मच विल बी काउंटरिंग दिस मच, तो जो एडिशनल बच गया ना, इसके कारण, बिकॉज ऑफ दिस द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट वी गोना हैव ऑफ कोर्स ई परपेंडिकुलर, एंड इस रीजन के कारण
इलेक्ट्रिक फील्ड जो पैरेलल होगा वो ऊपर की तरफ होगा, पैरेलल साइड विल बी अपवर्ड, ऊपर की तरफ होगा जी। नाउ कहने का मतलब क्या है कि अगर हमने अल्फा लेसर देन बीटा लिया है, we also can see alpha and beta will be lesser than 90 degree, acute angle दोनों होगा, and cos is a decreasing function, cos 0 1 होता है, cos 90 0 होता है, it's a decreasing function। अगर decreasing function है बच्चों, which means cos of alpha should be more than cos of beta। cos of alpha अगर alpha b से beta से छोटा है and we take the cos on both hand side, then this would become bigger, ये बड़ा हो जाएगा, है ना। अगर बड़ा हो गया इसका मतलब क्या हो गया, look at this one, this part is more than this part, which means this result is going to be a positive value। पॉजिटिव का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, देखो सही बात है ना। तो अपन को डायग्राम देख के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का नेसेसिटी नहीं है, अगर इसकी आप ईच एंड एवरी पार्ट को समझ रहे हो, अल्फा बीटा का रिलेशन समझते हो, आप इजिली मेक आउट कर सकते हो कि पॉजिटिव होगा, ऊपर की ओर होगा, नेगेटिव होगा या नीचे की ओर होगा। दिस इज इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। और गुड बच्चों, इतना समझ में आ गया है, चलो इसको नोट कर लो, कम ऑन नोट इट डाउन। और आप अल्फा इसको मान के चलो, बीटा इसको मान के चलो, स्टिक विद दिस नोटेशन, आपको थीटा 1 थीटा 2 करने की जरूरत नहीं है, आप अल्फा बीटा इसको मानकर चलो। या यू कैन टेक डी, और आप इसको डी हमने माना था ना, डी कहां गया भैया, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है ना डी, है ना, आप इसको डी आर इन वेरियस प्लेसेस यू माइट फाइंड दिस रिटन एज आर, दैट इज ओके, बट ट्राई टू स्टिक विद दिस नोटेशन, अल्फा बीटा के साथ आप नोटेट इसके साथ स्टिक करो, आपका कहानी आसान रहेगा। ऊपर वाला एंगल अल्फा, नीचे वाला एंगल बीटा इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अल्फा इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस बात को आप दिमाग में रखिए बच्चों, है ना। ओके, नाउ लेट्स इन सम स्पेसिफिक केसेस, हम उस चक्कर में थोड़े से स्पेसिफिक केसेस को देखते हैं और समझते हैं कि उस केसेस में क्या होगा बच्चों, है ना। पहला काम तो जो हमने देखा कि फाइनाइट रॉड का हमने निकाल लिया, ठीक है, तो फाइनाइट को हमने निकाल लिया। अगर मैं इस फाइनाइट को इनफाइनाइट कर दूं बच्चों, है ना, अगर मैं इस फाइनाइट को इनफाइनाइट कर दूं, then let us see what's going to happen if it is an infinite rod। अगर एक infinite rod है and let's suppose this is the point P where we have to find the electric field, है ना, ये हमारा point P है, यहाँ हमें electric field निकालना है, और this length is D। since it is infinite, obviously थोड़ा symmetrical हो जाएगा, right, है ना, it will be symmetrical। अब ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर A वाला लाइन इनफाइनाइट तरफ जा रहा है तो जो ज्वाइनिंग लाइन है वो पैरेलल हो जाएगा। अगर ये बात नहीं समझ में आ रही है, अब तो आप इस पॉइंट को ना यहां पर रख लो, इस पॉइंट को यहां पे कर दो, छोटा सा क्लोज बाय, राइट। नाउ ट्राई टू जॉइन दिस अपर लिमिट जो कि इंफिनिटी तरफ जा रहा है, राइट। तब से ज्वाइन करोगे, देखोगे कि दिस पॉइंट से जो लाइन ज्वाइन हो रहा है वो ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाता है, राइट। तो वो लाइन जो होगा बच्चों वो पैरेलल हो जाएगा, ऐसे 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 ऐसे। पैरेलल मींस जो एंगल अल्फा है दैट वुड बिकम हाउ मच, 90 डिग्री और पाई बाय 2। इवन द बीटा शुड आल्सो बी इक्वल्स टू 90 डिग्री और पाई बाय 2, है ना जी। ये हमारा अल्फा बीटा दोनों 90 डिग्री हो गया है। कहानी समझ में आ रहा है ना बच्चों। अब ध्यान से देखो, तो पैरेलल कंपोनेंट में ये 0 हो जाएगा, बोथ आर इक्वल, 90 90 0 0 खत्म। और लॉजिक भी है ना, जितना फील्ड इस तरफ से होगा उतना ही फील्ड इस तरफ से होगा, तो दोनों का जो कंपोनेंट है ऊपर नीचे वाला पैरेलल, कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। तो ओनली थिंग व्हिच विल बी लेफ्ट इज गोना बी E perpendicular component। तो आप सिंपल लिखोगे फॉर infinite rod E should be given as k lambda upon d sin 90 plus sin 90 1 plus 1 2। तो भैया हमारा आंसर हो गया 2k lambda upon d। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको बहुत टाइम पे काम आ जाएगा ना, आप इसको नोट कर लो। This is going to be the electric field intensity due to the infinite rod at a point d distance away from the line, है ना। ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको काम आएगा, ठीक है। दूसरा लिख लो सेमी इनफाइनाइट, दूसरा लिख लो सेमी इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड, है ना। इस केस में क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो ये वाला पार्ट हमारा सेमी इनफाइनाइट है और इसमें 3 केसेस आएंगे, मैं आपको समझाऊंगा कि पॉइंट जो है दैट कुड बी हियर और पॉइंट नीचे की तरफ भी हो सकता है, ठीक है। फॉर नाउ आई एम जस्ट कीपिंग इट सिंपल वन। ये हमारा इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जो कि यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस d पे है, राइट। फॉर दिस वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ऑब्वियसली वी कैन इजीली फिगर आउट, क्योंकि इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो अल्फा विल बी हाउ मच, अल्फा विल बी 90 डिग्री, बट द बीटा हैज टू बी हाउ मच, 0 डिग्री, क्योंकि एंगल व्हिच दिस लाइन PO इज मेकिंग विद PO इटसेल्फ इज 0। तो अल्फा 90 बीटा 0। इलेक्ट्रिक फील्ड देख लो, एक तो हमारा होगा वर्टिकल कंपोनेंट, तो E परपेंडिकुलर, obviously we can see it's going to be downward,
लॉजिकली भी मेरे को दिख रहा है, नहीं तो सॉल्व भी कर लेंगे तो पैरेलल कंपोनेंट आपको डाउनवर्ड ही दिखेगा, क्योंकि सारा का सारा चार्ज तो इस तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रहेगा, व्हिच विल हैव टू कंपोनेंट, ऑब्वियसली वी कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट, है ना। तो भैया तो यहाँ पे देख लो, तो ई परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा बच्चों, ई परपेंडिकुलर के लैम्डा अपॉन डी, अच्छा मैं लिख देता हूं, लैम्डा कूलम पर मीटर इज द चार्ज डेंसिटी, के लैम्डा अपॉन डी, और आपका साइन ऑफ अल्फा व्हिच इज, यहां देख लो, साइन 90 1, साइन 0 0, तो भैया 1 प्लस 0, तो दिस इज गोना बी ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट है बच्चों, दैट इज गोना बी के लैम्डा अपॉन डी। आई बिलीव आपको ये बात समझ में आ रही होगी ना। सिमिलरली इफ आई लुक एट ई पैरेलल, क्या हो जाएगा बच्चों, के लैम्डा अपॉन डी। नाउ सी दिस वन, cos of alpha, alpha is 90, cos of 90 is what, 0, minus cos of 0 which is 1, तो माइनस 1, देखो नेगेटिव आ रहा है ना, नेगेटिव का मतलब क्या है कि इट इज डाउनवर्ड, माइनस के लैम्डा अपॉन डी, नेगेटिव का मतलब है कि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, हमने ऐसा इसको लिख लिया, ठीक है, के लैम्डा बाई डी। ऑल गुड बच्चों, अगर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात करेंगे तो दैट शुड बी सिंपली के लैम्डा अपॉन डी, अगर हम मैग्नीट्यूड का बात करते हैं तो यहाँ पे cos ऑफ बीटा माइनस अल्फा हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है जी। एनीवेज, और एक लॉजिक भी समझ लो इसमें आप, है ना, कि डायरेक्शन मिल जाने से हमारा बहुत काम आसान हो जाएगा। तो अभी दिख रहा है कि मेरे को जिसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों, वो कैसे होगा, देखो दोनों का मैग्नीट्यूड इज सेम, राइट, तो जो नेट होगा दैट इज गोना बी एट 45 डिग्री, ये हमारा 45 डिग्री पे हो जाएगा, दैट इज गोना बी √2 के लैम्डा अपॉन डी, है ना, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। कहानी क्लियर है ना। तो दीज आर कपल ऑफ थिंग्स व्हिच यू शुड बी अवेयर। और इसी में एक और एग्जांपल कर लेते हैं, इसको नोट कर लो। अभी देखते हैं कि एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे हो तो क्या हो जाएगा ना, एग्जैक्टली अगर मिड पॉइंट पे होता है तभी क्या होगा। लेट अस सी व्हाट्स गोना हैपन इफ द पॉइंट इज फॉलिंग एग्जैक्टली एट द मिड पॉइंट बच्चों। तो हमने इस चीज को कवर अप कर लिया है ड्यू टू फाइनाइट, ड्यू टू इनफाइनाइट। अभी एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे हो जाएगा, देन व्हाट्स गोना हैपन, तो एग्जैक्टली मिड पॉइंट, ठीक है। तो मान लो कि हमने रॉड को ले लिया ऐसे और टिक 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 टिक, दिस इज द पॉइंट P at a distance d from where we have to find the electric field intensity. Let us say the charge density is lambda coulomb per meter और ये दिस इज द एग्जैक्ट मिड पॉइंट है, ठीक है। अंडर दो सर्कमस्टांसेस आपको दिख रहा होगा कि अल्फा एंड बीटा का जो वैल्यू है बच्चों, बोथ गोना बी इक्वल, अल्फा इज गोना बी इक्वल्स टू बीटा। मान लो कि है भैया वो थीटा, तो ये भी थीटा और ये भी थीटा। ऑल गुड, एग्जैक्टली द मिड पॉइंट, ठीक है, एग्जैक्टली एट मिड पॉइंट, एट मिड पॉइंट। उस केस में हो जाएगा आपका अल्फा बीटा इक्वल टू थीटा। तो ई परपेंडिकुलर क्या हो गया बच्चों, आपका हो जाएगा के लैम्डा अपॉन डी साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा, both are equal to theta, so I'll be having sin theta plus sin theta which means 2 sin of theta। तो हमारा ये बात बहुत समझ में आराम से आ रहा है कि 2 k लैम्डा अपॉन डी साइन ऑफ थीटा, ये हो गया बच्चों ई परपेंडिकुलर। सिमिलरली वी गोना हैव ई पैरेलल। ई पैरेलल तो क्या होगा, 0, क्योंकि cos थीटा माइनस cos थीटा विल बी 0, तो भैया ई पैरेलल हमारा हो गया 0। बेस्ट आउट ऑफ दिस हम इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, एक दो मैं आपको सॉल्व करवा देता हूं, ठीक है। तो फिलहाल आपको बात समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम इनफाइनाइट के लिए निकाल सकते हैं, फाइनाइट के लिए निकाल सकते हैं, सेमी इनफाइनाइट के लिए निकाल सकते हैं, मिड पॉइंट है उसके लिए भी हम लोग फिगर आउट कर सकते हैं द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ओके, लेट अस हैव अ क्विक एग्जांपल बच्चों, ठीक है। लेट्स सपोज इफ आई हैव 4 रॉड्स प्लेस्ड इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर, है ना, एक शेप ऑफ स्क्वायर में हमने रखा है। अगर सभी पॉजिटिव हैं, इफ ऑल ऑफ दीज हैज पॉजिटिव charge density lambda coulomb per meter and let's suppose lambda coulomb per meter, also lambda coulomb per meter, and they ask you to find the electric field intensity at the diagonal, है ना, point of intersection of diagonal precisely, है ना। इस पॉइंट पर अगर मेरे को निकालने बोलता है तो ऑब्वियसली 0 हो जाएगा, राइट। क्यों, देखो ध्यान से, इस पॉइंट पे मेरे को निकालने बोलता है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा क्योंकि इट इज फॉलिंग एट द मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट पे है ना, इसके कारण भी इस तरफ हो जाएगा एंड बोथ ऑफ देम गोना बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। बिकॉज ऑफ दिस वी कैन हैव इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड बिकॉज ऑफ दिस वी कैन हैव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज गोना बी 0, नो डाउट अबाउट दिस, राइट बच्चों, है ना। नाउ सो ये बहुत सिंपल है, ऐसा तो पूछेगा नहीं। एक काम करते हैं थोड़ा सा इसमें, अच्छा एक बात और,
अगर सपोज के इंस्टेड ऑफ दिस लैम्डा इफ आई वुड हैव हैड माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर, अगर नेगेटिव चार्ज है तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बच्चों, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड रादर हैविंग इन दिस साइड वो हो जाएगा आपका इस तरफ, है ना, डायरेक्शन आपका नेगेटिव हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। तो कैन वी जस्ट डू वन थिंग, हमने इसको माइनस लैम्डा कर दो, ठीक है, ये हमारा माइनस लैम्डा हो गया बच्चों, ठीक है, और एक काम करो इसको भी माइनस कर दो, ठीक है, माइनस लैम्डा कर दो। So these two are negative charge density, these two are the positive charge density। अब आपको सॉल्व करना है कि कितना इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। तो ये हमारा नेगेटिव चार्ज है, ये भी हमारा नेगेटिव चार्ज है बच्चों, है ना, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज माय पॉजिटिव चार्ज एंड दिस आल्सो इज द पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर O। आपको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फिगर आउट करना है। चलिए वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई कीजिए, उतना मुश्किल नहीं है, आराम से बना सकते हो अगर थोड़ा सा भी लॉजिक लगा दोगे, है ना, जो आपने सीखा अभी उसको ढंग से अप्लाई करोगे तो यू कैन इजीली फिगर इट आउट, मुश्किल नहीं है, ठीक है जी। चलो देखते हैं, साथ में करते हैं। बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज गोइंग टू बी डाउनवर्ड, बिकॉज ऑफ दिस आल्सो इट इज गोइंग टू बी डाउनवर्ड इटसेल्फ। तो कहीं ना कहीं हमारे पास क्या हो जाएगा 2e इन दिस डायरेक्शन, बिकॉज ऑफ दिस इट्स गोइंग टू बी इन दिस डायरेक्शन, and because of this in this direction, so here also we're going to have 2e and the resultant of this should be in this direction, equal होने से it's going to be at 45 degree, है ना। Well, let us figure out the value of e, let us figure out the value of e। I know that, let us suppose this length is a, हमने इसको a मान लिया, ठीक है, ये हमारा लेंथ a, ठीक है, ओके। तो if you look at this formula, क्योंकि मिड पॉइंट का ही है ना, this is for the midpoint, this is for the midpoint, इसके कारण जो E होगा that E should be how much 2k lambda upon D, D is how much, D is going to be a by 2, right बच्चों, तो D is going to be a by 2, be careful about this, है ना। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, D को R लिख के छोड़ देते हैं या फिर A लिख कर छोड़ देते हैं तो मुश्किल हो जाता है, ठीक है, it has to be a by 2, be careful about this। now this angle बच्चों कितना हो जाएगा, it is a square, so this is 90 degree, so this has to be how much 45 degree, 45 degree, I believe you guys are okay with this, this is 45 degree, this also is 45 degree, which means sine of 45 degree, sine 45 is how much 1 by root 2, 1 by root 2, तो भैया ये तो हो गया ऊपर, तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा 4 या फिर 2 root 2 लिख दो ना इसको, 2 root 2 k lambda upon a, कोई दिक्कत नहीं है ना, sin 45 is 1 by root 2, root 2 cancel, 2 root 2, तो this is the value of e, but यहाँ पे क्या है 2e, that implies that 2e should be 4 root 2 k lambda upon a, ये हमारा हो गया value of 2e, but we are trying to figure out the net resultant, तो resultant क्या हो जाएगा बच्चों 2e, this is going to be root 2 times of 2e, I believe you understand this easily, right, root 2 times of net electric field will be equal to root 2 times of the 2e, ठीक है जी। तो वैल्यू पुट कर दो और क्या, so the net electric field E net should be equals to root 2 times of 2e, that is root 2 times of 4 root 2 k lambda upon a, well that's going to be how much 8, so बच्चों net electric field is going to be 8 k lambda upon a, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर and the angle of course has to be 45 degree, ठीक है। तो these are the things that you're gonna face in this topic, और भी आगे इस पे हम चर्चा करेंगे, but we're gonna stop here only for this video lesson। I'm gonna see you in the next video lesson, till then keep studying and keep learning, and yes, if you like the way I teach, do like, share and subscribe, and also press the bell icon to get the notifications of all the videos that I upload। All good बच्चों, तो मिलते हैं next video में, till then take care, bye everyone।